بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میدانی علاقوں میں دھند چھا چکی ہے، شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ M2 کے راستے بھی دھندلا گئے ہیں۔ عبدالحکیم اور پنڈی بٹیاں تک کا سفر ناممکن ہو چکا ہے۔ شاہ زیب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ زیب بتائے گا حد نگاہ کیا ہے اور کیا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے؟ جی بالکل، اس وقت بھی جو ہے میں بابو صابو موٹر وے انٹرچینج کے اوپر موجود ہوں، جو کہ M2 کو بابو صابو انٹرچینج سے جو ہے وہ بیریئر لگا کے پنڈی پٹیاں اور عبدالحکیم انٹرچینج تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ دھند اور سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے موٹر وے 3 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا ہے، جبکہ حد نگاہ صرف اور صرف 100 میٹر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ شہر کے میدانی علاقوں میں بھی کافی زیادہ دھند نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت کا سلسلہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ دوسری جانب اگر شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرے گا، جبکہ ابھی کا درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی دھند ہونے کے باعث بڑھ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شہری جو ہیں وہ فوگ لائٹس کا استعمال دوران سفر ضرور کریں، اور موٹر وے پر سفر کرنے والے شہری جو ہیں وہ موٹر وے ہم سفر ایپ اور ہیلپ لائن 130 کا استعمال کر کے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے شاہ زیب بٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سال میں کتنا بجٹ درکار ہے؟ 337 منصوبوں کی مالیت 3 خرب 96 ارب۔ منصوبوں کے لیے روزانہ 1 ارب 8 کروڑ 62 لاکھ فنڈز دینے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں اس وقت مختلف نوعیت کے 337 منصوبوں پر کام تو جاری ہے، لیکن یہ کام سست روی کا شکار ہے۔ لاہور کے منصوبوں کو ایک سال میں مکمل کرنے کے لیے روزانہ 1 ارب 8 کروڑ 62 لاکھ روپے کے فنڈز کی ضرورت ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے حکومت یومیہ 33 ارب روپے کے فنڈز بھی دے تو منصوبے پر وقت مکمل ہو سکتے ہیں۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق لاہور میں 337 منصوبوں کی کل مالیت 3 خرب 96 ارب روپے ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں 61 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے، لیکن رواں سال کے مختص بجٹ کے مطابق لاہور میں روزانہ 16 کروڑ 43 لاکھ روپے خرچ ہونے چاہیے، مگر فنڈز کی قلت ہونے کے باعث موجودہ دور حکومت میں لاہور اب تک پہلے 6 ماہ میں روزانہ صرف 2 کروڑ روپے کا بجٹ استعمال کیا گیا ہے۔ LDA کی جانب سے شہر میں 5 میگا پروجیکٹ خزانہ نے منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے دینے کا معاملہ التوا میں ڈال دیا ہے۔ محکمہ خزانہ لاہور کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے لگا۔ LDA کو شہر میں 5 میں شروع کرنے کا ٹاسک دیا گیا، جس کی باقاعدہ منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے دی تھی۔ اب محکمہ خزانہ نے مذکورہ 5 منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے دینے کا معاملہ التوا میں ڈال دیا۔ محکمہ خزانہ نے LDA سے اورنج لائن میٹرو ٹرین کا 10 ارب روپے کا قرض بھی واپس مانگ لیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ LDA پہلے 10 ارب روپے واپس کرے، اس کے بعد نئے منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے جاری کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ نے شاہکام چوک اور کریم بلاک مارکیٹ میں فلائی اوور، فیروز پور روڈ پر گلاب دیوی ہسپتال کے سامنے انڈر پاس اور ریلوے اسٹیشن سے شیرا والا گیٹ تک اور ہیڈ برج کی تعمیر کی منظوری دی تھی۔ LDA کی صوبائی وزیر ہاؤسنگ کے حلقے میں ترقیاتی کاموں پر توجہ مرکوز۔ جوڑے پل علامہ اقبال ٹاؤن کی توسیع کے لیے 96 لاکھ سے زائد کی رقم فوری جاری کر دی گئی۔ انجینئرنگ ون کی تمام مشینری دن رات صوبائی وزیر کو خوش کرنے میں لگ گئی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جوڑے پل علامہ اقبال ٹاؤن کی توسیع کے لیے ہنگامی طور پر فنڈز جاری کیے ہیں۔ جوڑے پل جنکشن کی تعمیر میں حائل سٹرکچر کی ادائیگی کے لیے 96 لاکھ سے زائد کی رقم فوری طور پر جاری کر دی گئی ہے۔ جوڑے پل کے 2 طرف سلپ روڈز کی تعمیر میں دکانیں حائل تھیں۔ جوڑے پل کی ایک سائیڈ بھی نئے سرے سے تعمیر کی گئی ہے۔ اور شہر میں ٹریفک کا ازدحام، مصروف کاروباری شاہراہوں سے متعلق بڑا اقدام، پیدل چلنے والوں کے لیے شاہراہیں مخصوص کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ LDA کا ون وے یا پیڈسٹرائزیشن پر غور، بے ہنگم کمرشلائزیشن کے جن کو بھی سنگل ڈالے جائیں گے۔ سہولیات کیسے پیدا کی جائیں؟ آپ کے کمرشل سینٹرز ہیں، مالم روڈ ہے، اس طرح کی بہت سی جگہیں ہیں، ان جگہوں پہ ہم لوگ اپنے فٹ پاتھس کو بھی بڑا کریں تاکہ لوگ چلنے کے قابل ہوں، اور چلنے سے انسان ہیلدی بھی فیل کرتا ہے۔ آپ کچھ درخت بھی لگا سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں، تو اس پہ اب ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ شاید اس کے چکر میں کچھ ایسی شہر کی روڈیں ہوں جن کی وجہ سے ٹریفک جام کے مسئلے رہتے ہیں۔ شہر کی 5 ماڈل شاہراہوں اور چوک چوراہوں میں گداگری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مال روڈ، چیل روڈ، مین بالی وارڈ گلبرگ، MM عالم روڈ اور لوئر مال کو بیکاری فری قرار دے دیا گیا ہے۔
5 मरकजी शाहराहों पर गदागरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। माल रोड पर इस्तंबुल चौक से नहर की पुल तक किसी भी मकाम पर गदागरों को खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। करतबा चौक, जेल रोड, मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग, MM आलम रोड, लोअर माल DC ऑफिस से चुबुरजी चौक तक गदागरों के दाखिले पर पाबंदी होगी। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फिकार खुम्मन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MCL को पाबंद किया गया है कि वो इन सड़कों पर किसी भी भिखारी को दाखिल न होने दे। फंड्स नहीं दोगे तो तफ्तीश क्या खाक होगी। लाहौर समेत पंजाब भर के 20 अजला में तफ्तीश के लिए जारी किए गए बजट में से ₹1 भी इन्वेस्टिगेशन अफसरान को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में जारी न किया जा सका। केसेस में नाकिस तफ्तीश का रोना रोने वाले आला अफसरान खुद गैर मियारी तफ्तीश के जिम्मेदार हैं, क्योंकि तफ्तीश के लिए बर वक्त पैसे जारी नहीं किए जाते। आवाम के साथ चोरी, डकैती, कत्ल या दीगर किसी किस्म की वारदात हो जाए तो तफ्तीश के लिए खराजात भी आवाम के जिम्मे है, जिसकी असलियत पुलिस के अदादोशुमार ने खोल दी है। फाइनेंस ब्रांच की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक लाहौर समेत 20 अजला के DPOs ने तफ्तीशी फंड से 1 पाई तक नहीं खर्च की। अगर बात की जाए लाहौर पुलिस की तो रवा माली साल IG पंजाब ने तफ्तीश के लिए 4.25 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन 6 माह गुजर गए। हजारों केसेस में तफ्तीश करने वाले अफसरान और एहलकारों को ₹1 भी न दिया गया। तफ्तीशी अफसरान को फंड्स न देने से केसेस की तफ्तीश में खाना पूरी होने लगी है और शहरी तफ्तीशी निजाम से नाला नजर आते हैं। जब भी बात की जाती है नाकिस तफ्तीश की तो आला अफसरान नाकिस तफ्तीश का मलबा छोटे अफसरान पे डाल देते हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस से, तो कोरोना वायरस के बाद से शहरी बेहाल हैं। कातिल वायरस मजीद 13 जाने ले गया है। 24 घंटों में 263 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। काफली की आमिना उल्फत भी मर्ज में मुब्तला हो चुकी हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 118 मरीज ICU और 22 वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस का शिकार 13 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए और 263 नए मरीजों की भी तस्दीक की गई। रहनुमा मुस्लिम लीग का आमना उल्फत कोरोना वायरस का शिकार हो गयी। नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंसूर और हेले कॉलेज के असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी मर्ज में मुब्तला हो गए। शहर के अस्पतालों में कोरोना के 283 मरीज जेर इलाज हैं। 118 मरीज ICU और 22 वेंटिलेटर्स पर हैं। उधर जिले इंतजामिया की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां भी जारी हैं। मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग में सांबा बैंक की ब्रांच को सील कर दिया गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इंस्पेक्शन के दौरान 50 दुकानों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को भी सील किया गया। बाजारों मार्केट्स में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई। वजीर आजम की टाइगर फोर्स भी मैदान से गायब। अनारकली, नीला कुंबर, बानो बाजार समेत किसी मार्केट में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। की दूसरी लहर में शहर से रोजाना सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कारोबारी जिंदगी जारी रखने के लिए SOPs का तायुन किया गया था, लेकिन रोजमर्रा मामूल में इस पर कहीं अमल नहीं किया जा रहा। बाजारों में ना तो सार्फिन और ताजर मास्क लगाए नजर आते हैं, ना ही समाजी फासला बरकरार रखा जाता है। तोहम परस्ती में मुब्तला शहरी अभी भी ये समझते हैं कि कोरोना नामी मर्ज का कोई वजूद नहीं, इसलिए मास्क का इस्तेमाल तुरंत कर दिया है। ज्यादातर ये मार्केटों पे होता है यूज वगैरह, वैसे होता कोई नहीं है। हर बंदा भी वैसे फेर है। जिस तरह ओपोजिशन के जलसे वगैरह हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता, वैसे जहाँ तक मेरा बिलीव है, ईमान है, कि मुझे नहीं लगता कि कोरोना वाली कोई ऐसी सिचुएशन इधर पाई जाती है। ऐसे दुकानदारों की भी कोई कमी नहीं जो कोरोना को ख्याली मर्ज तस्वर करते हैं। बिल्कुल एक ड्रामा है कोरोना का। कोरोना नहीं है। अगर कोरोना हो तो देख लेंगे पूरी मार्केट में जितने भी दुकानदार है सब मास्क के बगैर बैठे। चीज है कि अब कोई अस्पताल में हार्ट अटैक हो गया वो भी कोरोना में, कोई ब्लड प्रेशर का मर गया वो भी कोरोना में, कोई कैंसर का है वो भी कोरोना में। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया के पास 2800 टाइगर फोर्स के रजाकारों ने रजिस्ट्रेशन कराई, लेकिन SOPs पर अमल दरामद के लिए ना तो सरकारी इदारे नजर आए, ना ही टाइगर फोर्स कहीं देखी गई। जिला इंतजामिया की कोरोना वायरस SOPs की कार्रवाइयाँ ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ सकी। यही वजह है कि आज भी शहर के मुख्तलिफ बाजारों में कोरोना वायरस की SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हॉस्पिटल, सीनियर रहनुमा एप्टमा गोहर एजाज और कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार खुम्मन ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। गोहर एजाज और कमिश्नर लाहौर ने UHS से कोरोना वैक्सीन लगवाई।
गवर्नर और साबिक वजीर खारजा के बाद मारूफ समाजी शख्सियत, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हस्पताल और सीनियर रहनुमा एप्टवा गौहर एजाज समेत कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन ने कोरोना वैक्सीनेशन ट्रायल में हिस्सा लिया। गौहर एजाज ने UHS से कोरोना वैक्सीनेशन करवा ली। गौहर एजाज से कहना था कि वैक्सीनेशन करवाने का मकसद लोगों में वैक्सीन के हवाले से शऊर और एतमाद को पैदा करना है। VC UHS ने बताया कि UHS वैक्सीनेशन ट्रायल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। जल्द वैक्सीनेशन मार्केट में दस्तयाब होगी। के दावे और वादे सब झूठे। शहर में सफाई का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। चौक यतीम खाना में कचरे के अंबार लग गए हैं। शिंगाई रोड पर गंदे पानी के डेरे हैं। मच्छरों की बहुतात है। ताफून से जिंदगी अजाब हो चुकी है। फैजबाग GT रोड पर गंदा नाला उबल पड़ा। वासा के तिफल सलियों से तंग शहरी सड़कों पर आ गए। शहर में सफाई ऑपरेशन ताहाल बेहतर ना हो सका। यतीम खाना चौक पर कचरे के अंबार लग गए। फिरोजपुर रोड से मुंसलिक फाजलिया कॉलोनी में कचरे के ढेर इंतजामिया को आईना दिखा रहे हैं। वहदत रोड पर भी कूड़े का ढेर लग गया। शहरी कहते हैं कई रोज अमला आता ही नहीं। बदबू और ताफुन ने जिंदगी मुहाल कर दी है। फैजबाग GT रोड पर गंदा नाला उबल पड़ा। शहरी कहते हैं फैजबाग के इस इलाके को वासा की मेहरबानी ने बेफैज कर दिया। पानी आज 10 दिन तो बंद है। गटर दे सड़क दे बहुत मजमा लगा है। हर बंदा लंघन वरना दा परेशान है। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स और ऑयल मार्केट में सीवरेज के नाकिस निजाम और उबलते गटरों ने कारोबार तबाह कर दिया। सूरत हाल से परेशान इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। चिकड़ और गारा मतलब कि यहाँ पे बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता। इतना कारोबार है, दुकानदार है यहाँ पे, लेकिन किसी को कोई असर ही नहीं है। 2 माह से ऐसे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ शहर की सफाई के लिए एक और दावा सामने आ गया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत असलम इकबाल ने 15 जनवरी तक लाहौर को वेस्ट फ्री बनाने का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत ने मुल्कगीर बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। शफाफ तहकीकात के लिए के इलेक्ट्रिक के कन्वीनियर और एक मेंबर को कमेटी में शामिल कर लिया गया है। वजारत पावर डिवीजन ने तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी के कन्वीनियर और एक मेंबर को के इलेक्ट्रिक से खालिद जावेद को तहकीकाती कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर किया, जबकि के इलेक्ट्रिक के मिस्टर सिंकलर को कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। इस तरह हसन सरफराज जैदी और मुसद्दक अहमद खान भी तहकीकाती कमेटी के मेंबर मुकर्रर किए गए हैं। तहकीकाती कमेटी ब्रेक डाउन की वजूहात का तयन करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिस्टम में खराबी पैदा होने पर बरवकत क्या हिफाजती इक़दाम किए गए, इस पर भी तहकीकात की जाएगी। जबकि माजी के ब्रेक डाउन में खराबियों पर NTDC ने क्या काम किया, उन अमूर को भी तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्तकबिल में ऐसे ब्रेक डाउन से कैसे बचा जा सकता है, इस पर कमेटी तजावीज दे। कमेटी 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके वजारत पावर डिवीजन को रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब भर में 70 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को स्कूल लाने का मंसूबा। महकमा स्कूल एजुकेशन इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद में इजाफा करेगा। मंसूबे के लिए फंड्स पंजाब हुकूमत और ज़ेवर तालीम प्रोग्राम से हासिल किए जाएंगे। करोड़ों रुपए की लागत से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को स्कूल लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से इंसाफ आफ्टरनून स्कूल की तादाद में इजाफा किया जाएगा। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी शुरू किया जाएगा। जराये के मुताबिक मुल्क भर में 2.5 करोड़ और पंजाब में 70 लाख तलबा स्कूलों से बाहर हैं। इससे कबल इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम 11 अजला में जारी है। मंसूबे के लिए ज्यादातर फंड्स जीरो तालीम प्रोग्राम से हासिल किए जाएंगे। आफ्टरनून स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी को इजाफी मुआवजा दिया जाएगा। मज़कूरा स्कूल पहले से मौजूद बिल्डिंग्स में खोले जाएंगे। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के लिए मुतलका इजला से कॉन्ट्रैक्ट पर लोकल भर्तियां भी की जाएंगी। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नए दाखिलों के लिए सरकारी स्कूलों में जगह का फुकदान था। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के आगाज से बच्चों के लिए स्कूलों में जगह की कमी का मसला हल हो जाएगा। तालीमी बोर्ड के लिए रेगुलर दाखिले भेजने की पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज़ की गई है। सरकारी कॉलेजेस के इंटरमीडिएट तलबा के बोर्ड्स में दाखिले भेजने के लिए दिसंबर टेस्ट की शर्त खत्म की जाएगी। सरकारी कॉलेजों में इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम तलबा और तलबात के लिए अच्छी खबर। तालीमी बोर्ड में दाखिले भेजने की पॉलिसी तब्दील की जा रही है। कॉलेजों में तलबा के असेसमेंट टेस्ट के बगैर ही बोर्ड में दाखिले भेजे जाएंगे। कोरोना के बाद तालीमी इदारों की बंदिश के पेश नज़र दिसंबर टेस्ट की शर्त खत्म करने की तजवीज़ है। पॉलिसी के तहत बोर्ड में रेगुलर दाखिला भेजने के लिए दिसंबर टेस्ट पास करने और 75% हाजिरी की शर्त आयद है। पॉलिसी में नरमी के बाद सरकारी कॉलेजों में ज़ेर तालीम तमाम तलबा के बोर्ड्स में दाखिले भेजे जाएंगे। पंजाब में तंबाकू नोशी के रुझान में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। 4 माह में शहरियों ने 6 अरब रुपए सिगरेट नोशी पर उड़ा दिए हैं।
पंजाब के अदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर में तंबाकू नोशी में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 4 माह में तंबाकू नोशी की फरोख्त में 20% इजाफा हुआ। ये तमाम इंकशाफात पंजाब के इदारा शुमारियात की सनती शोबे की पैदावारी रिपोर्ट में हुए हैं। तंबाकू नोशी की पैदावार में 9.4% बढ़ी, जबकि फरोख्त में 19% इजाफा हुआ है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी के दम दिलचस्पी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट जनाब फिल्टर क्लिनिक वहादत रोड पर खांसी के शरबत समेत अहम अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी के दम दिलचस्पी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। कंपनी से मुंसलिक हेल्थ फैसिलिटीज में अद्वियात की शदीद फुकदान है, जिससे शहरी परेशान हैं। गवर्नमेंट जनाब फिल्टर क्लिनिक वहादत रोड पर अहम अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। फिल्टर क्लिनिक पर आने वाले मरीज खांसी के शरबत से ही महरूम हैं। शहरियों का कहना था कि सर्दी के पेश नज़र हॉस्पिटल में खांसी, नज़ला, जुकाम की अद्वियात की वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने कौम के 600 अरब रुपए बचाए, जिस पर नैब को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अदालत के बाहर पुलिस के साथ तसादुम में MSF का कारकुन जख्मी हो गया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया मगर अभी तक रिपोर्ट फराहम नहीं की गई। उन्होंने एक बार फिर चिन्योट माइंस के हवाले से बयान दिया कि कौम के 600 अरब बचाने पर नैब को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने शहबाज शरीफ के टैक्स रिकॉर्ड का ऑडिट करने वाले ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब करने की दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने रिकॉर्ड समेत तलबी के अहकाम दे दिए। अहाता अदालत में मियाँ शहबाज शरीफ का साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ और सलमान शहबाज से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नजीर, राना अख्तर महमूद, मलिक मोहम्मद अब्दुल रऊफ, सुमैया शाहीन समेत कारकुन पार्टी क़यादत के साथ यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुंचे। पार्टी रहनुमाओं ने नैब के ट्रायल को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। ये है इनका नवाज शरीफ साहब के साथ बुग़्ज़, यानी इमरान खान साहब ऑपोजिशन का नाम लिए बगैर ना नाश्ता करते हैं, ना दोपहर का खाना खाते हैं, ना रात का खाना खाते हैं। पंजाब से भी रवाना जी लोग आते भी हैं, क्योंकि ये पार्टी प्रेसिडेंट के साथ अदालत करनी थी और एक मुश्किल में, एक मुसीबत में, एक हौसला अफजाई के लिए, एक उनके बेगुनाह और बेकसूर होने की तायद के लिए। जो नैब है ये ब्लैक मेलिंग का एक अदारा है। यहाँ पर लोगों को अंदर रख के अपने मुताबिक ढाला जाता है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत से वापसी पर पुलिस और कारकुनों में तसादुम हो गया। पुलिस पर MSF कारकुन फैसल को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम लगाया गया। ये सिर्फ इंतकाम है और अल्लाह ताला सिर्फ गुजर जाए। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत आज तक उन पर एक धैले की करप्शन साबित नहीं कर सकी, सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कैमरामैन इमरान सदीकी, खालिद महमूद, सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ उमर असलम। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार खालिद आसिफ के खिलाफ नैब तफ्तीश का मामला है। नैब ने खालिद आसिफ की मुबैना बेनामी कंपनी के निजी बैंक अकाउंट के रास्ते मजीद मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश कर लिया है। IMA को कंपनी के MD के बयान की रोशनी में रिकॉर्ड पर चिरा हुई। नैब सराय के मुताबिक निजी बैंक के अकाउंट नंबर 200222437336 से हासिल की गई मालूमात से नारोवाल के रिहायशी उस्मान यूसुफ और दीगर शामिल तफ्तीश बेनामी कंपनी ख्वाजा आसिफ के करीबी साथी तारिक मीर एंड कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सराय के मुताबिक नैब ने तफ्तीश के दौरान ख्वाजा आसिफ को इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी के MD इलियास सोलम के जवाबात सामने रखे। इलियास सोलम ने नैब को उकामा के रास्ते UAE मुबैना मुलाजमत का रिकॉर्ड फराहम किया था। ख्वाजा आसिफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी MS आईमोको की दस्तावेजात का मुबैना जाली इस्तेमाल किया। सराय के मुताबिक जाली दस्तावेजात के रास्ते नाजायज सराय से की गई आमदन बतौर तनख्वाह जाहिर की गई। ख्वाजा आसिफ के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 13 करोड़ 60 लाख बतौर तनख्वाह वसूल की। MS आईमोको के फराहम करदा रिकॉर्ड और ख्वाजा आसिफ के बयानात में वाज़िया तज़ाद मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक के लिए केस में रिलीफ। नैब ने ख्वाजा साद रफीक के बतौर वजीर रेलवे लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदे जाने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया है।
नैब ज़राए के मुताबिक डीजी नैब लाहौर ने तफ्तीशी टीम की इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवा दी। चेयरमैन नैब इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर पर 4000 से 4500 हॉर्स पावर के रेलवे इंजन महंगे दामों खरीदने के इल्जाम थे। शिकायत गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पाकिस्तान रेलवे को 20 से ज्यादा लोकोमोटिव की जरूरत नहीं थी, जबकि ख्वाजा साद रफीक ने जरूरत से ज्यादा लोकोमोटिव खरीदने की मंजूरी दी। शहबाज ततला कत्ल केस में पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्टरी के एक्सपर्ट ने बयान कलमबंद करवा दिया है। SSP मुफक्कर अदील समेत केस के 3 मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। इंटरनेशनल सेशन जज अरशद जावेद ने शहबाज ततला कत्ल केस पर समाअत की। साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला कत्ल केस के चालान में SSP मुफक्कर अदील, असद सरवर और इरफान अली को मुल्जिमान नामजद किया गया है। उन्हें सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। अदालत में अब मुकदमे का ट्रायल जारी है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्टरी के एक्सपर्ट ने केस में अपनी शहादत कलमबंद कराई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान ने शहबाज ततला को कत्ल करके बाद में तेजाब में डाल दिया था। लाश गलने के बाद इसे सीवरेज में बहा दिया गया। अदालत ने दीगर गवाहान को तलब करते हुए समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल्स को भिजवाए गए इनकम टैक्स नोटिस चैलेंज की दरखास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद शेख ने चौधरी शुगर मिल्स को भिजवाए गए नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल्स को भिजवाए गए इनकम टैक्स नोटिस चैलेंज की दरख्वास्त पर जस्टिस आबिद शेख ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कमिश्नर के पास इख्तियार है कि किसी भी फर्म का ऑडिट करवा सकता है, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले भी हमारी मिल्स को अताब का निशाना बनाया जा रहा है। उनके नोटिस जो पहले मौसूल हुए और अब वालों में कोई फर्क नहीं है, फकत रकम के आदात तब्दील हैं, जिस पर सरकारी वकील ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि अभी तो ऑडिट होना है, ऑडिट करवाने के लिए नोटिस भेजे हैं। ऑडिट से कबल ये दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो ऑडिट होना है, जब ऑडिट हो जाएगा तो फिर एतराजात लगा सकते हैं। दरख्वास्त के काबिले समाअत होने पर मजीद दलाल तलब कर लिए गए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील को तैयारी की मोहलत दे दी। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, FBR समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। 50 अरब सालाना की लागत से 11 करोड़ अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत पंजाब का आइंदा साल से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम जमा बख्श का कहना था कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर सालाना 50 अरब लागत आएगी। पंजाब हुकूमत के इस प्रोग्राम से सूबे के 11 करोड़ आबादी मुस्तफीद होगी। हर खानदान के फर्द को 5 से 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम से कबल सूबे की हेल्थ सहूलियात को अपग्रेड किया जा रहा है। इंसेंटिव अलाउंस के नाम पर सरकारी अफसरान पर नवाजिशात। मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान के लिए इंसेंटिव अलाउंस मंजूर होते ही तनख्वाहों में 150 गुना इजाफा हो गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान के लिए 1 लाख से 1.5 लाख, IDP अफसरान के लिए 50,000 से 1,35,000 इंसेंटिव अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई, जबकि GM IDP के लिए 1,20,000, GM ह्यूमन रिसोर्सेज IDP के लिए 1,35,000 की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच साउथ पंजाब की माहाना तनख्वाह पैकेज 3 लाख, डायरेक्टर ऑपरेशंस एलीट पुलिस के माहाना तनख्वाह 2,25,000 करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी SPU की तनख्वाह 2,25,000 रुपए माहाना करने की मंजूरी दी गई है। पेंशन फंड के आला अफसरान की तनख्वाहें 1,26,000 से लेकर 83,000 तक कर दी गई हैं। पेंशन फंड्स के पोर्टफोलियो मैनेजर की तनख्वाह 4,83,000 कर दी गई। पेंशन फंड्स के असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर 3,41,000 रुपए तक बढ़ा दी गई। असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट रिसर्च एनालिस्ट की तनख्वाह 1,89,000 रुपए कर दी गई है। हाजी पंजाब इनाम गनी ने लाहौर के SSP एडमिन समेत 7 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक वकास शुएब कुरैशी को SSP एडमिन लाहौर तैनात कर दिया गया है। DPO बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान को SSP इन्वेस्टिगेशन 1 पंजाब तैनात किया गया है। SSP जाहिर नवाज मुरव्वत को DPO बिहाड़ी लगा दिया गया है। उस्मान एजाज बाजवा को AIG इंस्पेक्शन तैनात कर दिया गया है, जबकि नजीबुल्ला बगोई को AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी तैनात किया गया है। जमील जफर को DPO पाकपतन और काशिफ असलम को DPO साहिबाल तैनात किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई। ममनुआ अशिया की मौजूदगी और कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 6 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया गया है।
सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ममनुआ अशिया की मौजूदगी और कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 6 फूड प्वाइंट्स सील कर दिए गए। कच्चा रावी रोड पर आजाद स्वीट्स एंड बेकर्स को जायदुल मियाद अशिया की फरोख्त और जंग आलूद मशीनरी के इस्तेमाल पर सील कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि फंगस ज़दा अशिया की मौजूदगी और नामुकम्मल लेबलिंग पर वाहगा टाउन में शोएब बेकर्स को सरबमहर करार दिया गया। आइडियल स्वीट्स एंड दही भल्ले को टूटे बदबूदार फ्रीजर के इस्तेमाल और इंतहाई नाकस स्टोरेज पर सील किया गया। अनारकली में कसरे शीरी गोदाम को चूहों के फुजलात की मौजूदगी, गंदे और बदबूदार माहौल की बिना पर सील किया गया। बहरिया टाउन में शवारमा पॉइंट को खुले मसालों के इस्तेमाल और सफाई के नाकस इंतजामात पर सरबमहर कर दिया गया। बट होटल को स्टोरेज एरिया में बिल्लियों की मौजूदगी और मुलाजमीन के मेडिकल्स और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स न होने पर सील किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से लाहौर के लिए अप्रैल से परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में लिखा गया है कि अप्रैल 2021 से लाहौर के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं की जाएंगी। परवाजों से मुतल्लिक मुसाफिरों को आगाह भी किया जाएगा। परवाजों से मुतल्लिक अपडेट ब्रिटिश एयरवेज की वेबसाइट पर दी जाएगी। ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से लाहौर के लिए अप्रैल से परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। अप्रैल 2021 से लाहौर के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं की जाएंगी और परवाजों से मुतल्लिक मुसाफिरों को आगाह कर दिया जाएगा। पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुख्तलिफ कमेटीज तश्कील देने का फैसला कर लिया है। पीडीएम के मुश्तरका फैसला के बाद पार्लियामान में मौजूद जमातों ने ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। इस हवाले से लीगी ज़राए के मुताबिक ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान समेत दीगर अहम लीगी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटी अरकान ज़मनी इंतखाबात वाले हलकों में जलसों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी करेंगे। लीगी ज़राए के मुताबिक लीगी लायर्स विंग पर मुश्तमिल लीगल एड कमेटी भी बनाई जाएगी। लीगल एड कमेटी लीगी उम्मीदवारों को कानूनी मामलत फराहम करेगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन डे के हवाले से वोटर्स को निकालने और पोलिंग स्टेशन के मामलात को देखने के लिए लीगी खवातीन एमपीज और अहम कारकुनान को खुसूसी टास्क दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक खुसूसी कमेटियां ज़मनी इंतखाबात के हलकों के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून की क़यादत को देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गंदम, आटे के स्टॉक, कीमतों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला को अब्दुल अलीम खान ने गंदम और आटे के स्टॉक, निरखों और अपने महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गंदम और आटे के स्टॉक और निरखों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निरखों पर दस्तयाब है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। अवाम को रिलीफ देना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान कभी कश्मीरियों की हिमायत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में रुकने कौमी असम्बली सालिक हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान कभी कश्मीरियों की हिमायत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। कश्मीरियों की कुर्बानियां कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। नून लीग के मरकजी दफ्तर NA 133 में MNA परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज से कारकुनों की मुलाकात हुई। लीगी रहनुमाओं ने मीनार पाकिस्तान जलसे में भरपूर शिरकत पर हल्के की अवाम और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। टाउनशिप में अराकीन कौमी असम्बली परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक की कारकुनान से मुलाकात हुई। उन्होंने PDM जलसे में भरपूर शिरकत पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। इजलास में कामरान भट्ट, आसिफ इंसारी, इशफाक जट, आमना खुर्शीद, बिलावल अबान, अब्बास अली और अमीन तूर ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो मसाइल हल करने के जिम्मेदार हुक्मरान हैं उन्होंने अवाम को बेआसरा छोड़ दिया है। शहर में होने वाले अहम इजलासों और मुलाकातों का हवाला जानिए इस रिपोर्ट में।
लाहौर मुदस्सिर रियाज की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम की पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जिला इंतजामिया और हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक मुहिम के पहले रोज 5,30,472 बच्चों को विटामिन ए के कतरे पिलाए गए। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद रोगर ने शहर में अमनो अमान और पेट्रोलिंग का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मुकामात और शाहराहों का विजिट किया। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों से मसाइल दरियाफ्त किए। सूबाई वजीर मलिक नोमान लंगड़ियाल से सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकई और सूबाई वजीर मोहसिन लगारी ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। समनाबाद टाउन ऑफिस में हफ्ता सफाई के हवाले से इजलास हुआ। LWMC ने लाहौर को 15 जनवरी तक साफ करने का ऐलान किया, जबकि सफाई मुहिम से मुतालिक अमले ने शहरियों में पंफलेट्स भी तकसीम किए। शादरा मार्केट्स बोर्ड के ताजरों का इजलास हुआ। शुरा ने हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ताजरों ने कहा कि शादरा मोड़ लाहौर का दाखिली रास्ता है, हुकूमत फौरी फ्लाईओवर तामीर करे। खुसूसी बच्चों के लिए जदीद निसाब मुरतब के लिए डायरेक्टर जनरल परवेज इकबाल भट्ट की जेर सदारत इजलास हुआ। परवेज इकबाल भट्ट ने कहा कि खुसूसी बच्चों को कारामद शहरी बनाने के लिए निसाब में तब्दीली वक्त की अहम जरूरत है। मजहबी रहनुमा पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह की जेर सदारत बैनुल मसालिक कायदीन का इजलास हुआ। शुरा ने फिरकावारियत को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के अज़्म का इजहार किया। और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल ऑफिस का दौरा। सीनियर नायब सदर FPCCI ख्वाजा शाहजेब अकरम से मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने जनरल हॉस्पिटल में बिजली बचाव मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मुल्क में होने वाले बिजली के हालिया ब्रेकडाउन का जिम्मेदार भी अपोजिशन को ठहरा दिया। बोले हर महकमे की तरह इस महकमे में भी माफिया का राज था। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बिजली बचाव मंसूबे के तहत 1305 पंखे और 5061 लाइट्स तब्दील की गई। बिजली मसनूआत की तब्दीली से 700 यूनिट्स फी घंटा की बचत होगी, जबकि सालाना 11 करोड़ रुपए बिल की मद में बचेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर तवानाई ने बिजली के ब्रेकडाउन का जिम्मेदार अपोजिशन को करार देते हुए कहा कि 40 साल ट्रांसमिशन सिस्टम में तब्दीली नहीं लाई गई। हर महकमे में जैसे कार्टरल्स बैठे हैं वैसे यहाँ भी थे। USAIDs और दीगर इदारे उन्हें ट्रेनिंग देने आए और इधर आकर जूते घिसाकर चले गए। आगे बढ़ते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाले अफसरान और एहलकारों के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब का कहना था कि लाहौर पुलिस की टीम्स ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना महारत से दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। IG पंजाब इनाम गनी ने लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकारों को तारीफी असनाद दी और कैश इनामात से नवाजा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में 40 अफसरान और एहलकारों में 25 लाख के नकद इनामात तकसीम किए गए। इनामात हासिल करने वालों में CIA, CTD, CRO समेत दीगर शोबों में तैनात अफसरान और एहलकार शामिल हैं। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद हाईकोर्ट बार की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ चुकी है। आसिमा जहांगीर ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। हाईकोर्ट बार के 4 ओहदों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के उम्मीदवारों के वोटर्स वकला से राबितों में तेजी आ चुकी है। अहाता हाईकोर्ट और चैम्बर्स में वोटर से राबिते जारी हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बच्चों के इस्तेसाल के वाकयात में कमी नहीं आ सकी है। चाइल्ड ब्यूरो ने 2 साल में पंजाब में 12,000 बच्चे रेस्क्यू किए। बच्चों के हुकूक की आगाही के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया है। बट्टी में आगाही वॉक की गई। बच्चों के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए आगाही पंफलेट तकसीम किए गए। आगाही मुहिम में तलबा तलबात, पंजाब पुलिस, डॉल्फिन पुलिस, समाजी अदारों, सियासी शख्सियत समेत सिविल सोसाइटी ने भी हिस्सा लिया। मामले खसूसी इत्तलात डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र बच्चों की मेहनत मजदूरी को जुर्म करार दिया है। सड़कों पर भीख मांगने और काम करने वाले बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, जिन्हें सीने से लगाकर बाइख्तियार बनाना है। हमने इन बच्चों को एक तो सीने से लगाना है और ये सड़क पे मांगने वाला जो हाथ है, जो हर गाड़ी के आगे खड़ा होके आपसे फरियाद करता है, उस हाथ को हमने बाख्तियार बनाना है। 370 चाइल्ड अब्यूज के विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया और सिर्फ रेस्क्यू नहीं, शेल्टर, तालीम प्रोवाइड की गई और रिहेबिलिटेट किया गया और फैमिली से वापस रीयूनिफाई करवाया गया 2 साल में। चाइल्ड ब्यूरो के मुताबिक बच्चों के इस्तेहसाल और ज्यादती में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए केसेस की बड़ी वजह कवानीन पर अमल दरामद ना होना है, जिस पर हमने देखा है कि हुकूमत और अदारे हमेशा वादे और दावे करते हैं, लेकिन हकीकी इस पर काम नहीं किया जा सकता। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर।
राइडर को सहूलत और कैप्टन को फायदा पहले से ज्यादा। पीक आवर का झंझट खत्म, रात हो या दिन एक ही जैसा बिल। अब पाकिस्तानियों के लिए इंग्लैंड की नंबर 1 कैब सर्विस माई लिफ्ट लाहौर शहर में कामयाबी के झंडे गाड़ने लगी है। राइडर को सहूलत और कैप्टन को फायदा पहले से ज्यादा होगा। पीक आवर का झंझट खत्म हो चुका है, रात हो या दिन हो एक ही जैसा बिल होगा। पाकिस्तानियों के लिए इंग्लैंड की नंबर 1 कैब सर्विस माई लिफ्ट अब लाहौर शहर में कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। अगर आप भी अपने सफर को मजीद आसान बनाना चाहते हैं तो इंग्लैंड की नंबर ऐप माई लिफ्ट ऐप को अभी डाउनलोड करें और बेहतरीन सहूलत से फायदा उठाएं। पीक आवर हो या दिन हो या रात, अब बिल बनेगा मुनासिब, क्योंकि अब हाजिर है आसानियों का सफर माई लिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियों के सिलसिले में कंडीशनिंग कैंप जारी। कोचेज ने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाई। नेशनल हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर और कजाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप के हवाले से खुसूसी सेशन हुए। तरबियती कैंप में शरीक खिलाड़ियों को 2 ग्रुप्स में तकसीम करके ट्रेनिंग करवाई गई। एक ग्रुप ने कजाफी स्टेडियम में कोचेज की जेर निगरानी फील्डिंग प्रैक्टिस की, जबकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कैंप में खिलाड़ियों को एंटी डोपिंग और एंटी करप्शन पर लेक्चर्स दिए गए। नौजवान खिलाड़ियों को फिटनेस और न्यूट्रिशन पर भी खुसूसी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। कैंप के लिए ऐलान 31 खिलाड़ियों में से 28 ने रिपोर्ट कर दी है, जबकि 3 खिलाड़ी पाकिस्तान कप में शिरकत के बायस कैंप में शरीक न हो सके। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने मौसीकी के मुख्तलिफ साज ऑनलाइन सिखाने का एहतमाम कर लिया है। फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ट्यूटोरियल से तबला बजाना सीख सकते हैं। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने मौसीकी सिखाने के लिए मुख्तलिफ साजों के ट्यूटोरियल रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। अलहमरा अकेडमी के साथ मुख्तलिफ साजों पर ट्यूटोरियल बनाया गया है और अब तबले की क्लास का वीडियो बनाकर रिलीज किया गया है, ताकि वो तलबा जो अलहमरा अकेडमी नहीं आ सकते वो इस वीडियो से ही सीखने की कोशिश करें। अभी आपको बताएं कि मैनचेस्टर से लाहौर ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BA 259 35 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार है। परवाज BA 259 के मुसाफिर और फैमिलीज सख्त जहनी अजियत में मुब्तला हैं। मैनचेस्टर से लाहौर ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BA 259 35 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और ताखीर का शिकार है। परवाज BA 259 के मुसाफिर और फैमिली सख्त जहनी अजियत में मुब्तला हैं। वसीम चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा क्या वजह बनी ताखीर की? जी बिल्कुल, मैनचेस्टर से ब्रिटिश एयरवेज की परवाज BA 259 जो थी वो गुज़िश्ता सुबह 7 बजे मैनचेस्टर से लाहौर के लिए रवाना होनी थी। क्योंकि इसको डायरेक्ट फ्लाइट ही कहा जाता है। ब्रिटिश एयरवेज के जो मुसाफिर हैं मैनचेस्टर से, उनको जहाज के लिए लंदन हीथ्रो पहुंचते हैं, तो वहां पर तकरीबन 1-1.5 घंटे के वक्फे के बाद उनको दूसरी फ्लाइट में लाहौर के लिए जो है वो रवाना कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो मैनचेस्टर से फ्लाइट सुबह 7 बजे यहाँ से मुसाफिर एयरपोर्ट पर पहुंचे और 10 बजे करीब आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।